हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको हंटिंग बिग गेम विद द कैमरा रिटन बाय मेजर ए रेडक्लिफ डगमोर के लॉन्ग आंसर के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डिड द राइटर टर्न टू द कैमरा फॉर हंटिंग बिग गेम। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए लेखक कैमरे की ओर क्यों आकर्षित हुआ, इम्पोर्टेंट है। और शूटिंग विद ए कैमरा इज ए बेटर स्पोर्ट देन शूटिंग विद ए राइफल इफ़ सो प्लीज गिव रीजन। राइफल से गोली मारने की अपेक्षा कैमरे से तस्वीर खींचना ज़्यादा अच्छा खेल है, यदि ऐसा है तो कारण बताइए, इम्पोर्टेंट है। आंसर, द राइटर वाज एन एक्सपर्ट हंटर, ही एंजॉयड हंटिंग एज ए स्पोर्ट। इट मीन्स दैट द गेम ऑफ हंटिंग शुड involve lot of difficulties. Hunting through a lot of difficulties was his joy. He did not hunt just for killing the animal in a dull manner. By and by the kind of rifles improved, it became very easy to kill wild animals without any sport and difficulty. The writer did not like this sort of killing. He received no pleasure out of easy killing of animals because it was then a one-sided game. The poor animal had no chance to run away. Such a hunting was totally without excitement to the writer. The writer was an artist, but he thought that drawing sketches in the jungle in the presence of wild animals was a difficult job, so he turns to the camera for taking photographs of those animals. With the camera he was able to have all the pleasure of hunting without cruel killing. लेखक एक कुशल शिकारी था, उसे शिकार करने में एक खेल का सा सुख मिलता था। इसका अर्थ था कि शिकार करना कठिनाइयों से भरा हुआ होना चाहिए। कठिनाइयों से गुजरते हुए शिकार करने में उसे सुख मिलता था। उसके शिकार करने का उद्देश्य जानवरों की हत्या करना मात्र नहीं था। धीरे धीरे राइफलों में सुधार हुआ। बिना किसी खिलवाड़ व कठिनाई के जंगली पशुओं को मार डालना बहुत आसान हो गया। लेखक को इस प्रकार का हत्याकांड पसंद नहीं था। पशुओं की सरलता से हत्या कर देने में उसे कोई खुशी नहीं होती थी, क्योंकि तब यह एक तरफा खेल बन गया। ऐसा शिकार लेखक को तनिक भी रोमांचित नहीं कर पाता था। लेखक एक कलाकार था, किंतु उसका विचार था कि जंगल के अंदर जंगली पशुओं के सामने ही कागज़ पर उनके चित्र बनाना एक कठिन कार्य था, इसलिए वह कैमरे का प्रयोग करने लगा। कैमरे के द्वारा बिना निर्दयी हत्याकांड के ही शिकार का पूरा आनंद मिलने लगा। क्वेश्चन, नरेट द इंसिडेंट ऑफ टेकिंग ए फोटोग्राफ ऑफ राइनोसेरस। गैंडे का चित्र खींचते समय लेखक को जो अनुभव हुए उनका वर्णन कीजिए, इम्पोर्टेंट है। और ब्रीफली डिस्क्राइब द इनकाउंटर ऑफ द ऑथर with the rhino as given in the lesson hunting big game with the camera, important है। hunting big game with the camera नामक पाठ में लेखक की गैंडे से मुठभेड़ का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर, मेजर डगमोर हैड द कीन डिजायर ऑफ फोटोग्राफिंग द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। दिस डिजायर took him to the thick jungles of East Africa, which had a number of wild animals. Major Dugmore wanted real exciting photograph of the attacking rhinos. To him, photography was a job of thrills in the jungle of East Africa. One day he saw a rhino standing on a low hill. His friend Clark was also with him. The rhino lay down and slept. For taking a close photograph of the big animal, Major Dugmore and Clark silently crawled towards him in order to get a thrilling pose of the terrible rhino. Major Dugmore shouted at him. The rhino jumped up with a remarkable speed and ran towards these two men to kill them. When the rhino was about 15 yards from them, Major Dugmore took his photograph, but at the same time there was the danger of life for Major Dugmore, as the rhino was coming nearer and nearer with full speed to attack him. In order to save his life, his friends
clerk fired at the animal, having received a wound on his shoulder. The rhino ran off into the jungle. Later on, the writer had similar dangerous experiences with other rhinos also. Finally, he gave up the idea of taking photographs of the rhinos and desired to shoot lion with his camera. So the writer had the above experiences in taking a photograph of rhinoceros. मेजर डगमोर के अंदर सभी प्रकार के जंगली जानवरों की फ़ोटो खींचने की प्रबल इच्छा थी। यह इच्छा उन्हें पूर्वी अफ्रीका के घने जंगलों में ले गई, जिसमें अनेक जंगली जानवर थे। मेजर डगमोर हमला करते हुए गैंडे की वास्तविक रोमांचकारी तस्वीरें खींचना चाहते थे। उनके लिए फ़ोटो खींचना एक रोमांचकारी काम था। पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में एक दिन उन्होंने एक नीची पहाड़ी पर एक गैंडे को खड़े हुए देखा। उनके साथ उनका मित्र क्लार्क भी था। गैंडा लेट गया और सो गया। उस विशाल पशु के पास से चित्र उतारने के लिए मेजर डगमोर तथा क्लार्क चुपके से उसकी तरफ रेंगते चले गए। उस भयानक गैंडे का एक रोमांचक चित्र खींचने के लिए मेजर डगमोर उसकी तरफ चिल्लाया। गैंडा उछल पड़ा और तेज गति से उन दोनों आदमियों की तरफ उन्हें मार डालने के लिए दौड़ा। जब गैंडा उन लोगों से 15 गज की दूरी पर था तो मेजर डगमोर ने उसका फ़ोटो खींच लिया, किंतु उसी समय मेजर डगमोर की ज़िंदगी के लिए खतरा पैदा हो गया, क्योंकि वह गैंडा पूरी गति से मेजर डगमोर पर आक्रमण करने के लिए उनके निकट दौड़ा चला आ रहा था। उनका जीवन बचाने के लिए उनके मित्र क्लार्क ने उस पशु पर गोली चला दी। अपने कंधे पर चोट खाकर वह गैंडा जंगल में भाग गया। बाद में लेखक को अन्य दूसरे गैंडे से भी इसी प्रकार के खतरनाक अनुभव हुए। अंत में उसने गैंडे की तस्वीरें खींचने का विचार त्याग दिया था। अपने कैमरे से बब्बर शेर की तस्वीरें खींचने की इच्छा प्रकट की। इस प्रकार लेखक को उपयुक्त अनुभव उस समय हुए जब उसने गैंडे के चित्र उतारने की चेष्टा की। क्वेश्चन, हाउ कुड द राइटर टेक द फर्स्ट सक्सेसफुल फोटो ऑफ ए लायनेस? लेखक एक शेरनी का सफलतापूर्वक चित्र किस प्रकार ले सका? और डिस्क्राइब द टेकिंग ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल फोटोग्राफ ऑफ द वाइल्ड लायन बाय मेजर डगमोर। मेजर डगमोर द्वारा शेर का प्रथम सफलतापूर्वक चित्र लेने का वर्णन करो। आंसर, हैविंग फोटोग्राफ्ड द एंटीलोप एंड द राइनोस द ऑथर थॉट ऑफ photographing a lion, but it was not an easy task. The lions generally come out at nights. They did not care to come in the range of the camera also. But one night luck smiled on the other. He saw a fine lioness standing only 12 yards away from him. She stood still and looked straight into his eyes. The author saw her in the light of his torch. He at once pressed the switch of the flashlight. There was a loud explosion and dazzling glare which blinded him for some time. During that moment, the author could not know whether the disturbed lioness was coming to attack him or was going away into the jungle. Luckily, the lioness preferred to return into the jungle. Fortunately, the photograph turned out to be very nice. It was the way in which the first successful photograph of a lioness was taken by the author. बड़े हिरणों व गैंडों की तस्वीरें खींचने के बाद लेखक ने बब्बर शेर की तस्वीरें खींचने का विचार किया, किंतु यह आसान काम नहीं था। शेर अधिकतर रात में ही निकलते थे। वे कैमरे की सीमा के अंदर आने की परवाह भी नहीं करते थे। किंतु एक रात को सौभाग्य लेखक पर मुस्कुरा उठा। उसने देखा कि उससे केवल 12 गज की दूरी पर एक सुंदर बब्बर शेरनी खड़ी हुई थी। वह शांत खड़ी थी तथा सीधे लेखक की आंखों में झांक रही थी। लेखक ने उसे अपनी टॉर्च के प्रकाश से देखा। उसने तुरंत ही तेज रोशनी वाला बटन दबा दिया। जोरदार धमाका हुआ, साथ ही चकाचौंध कर देने वाली रोशनी चमकी, जिसने उसे कुछ देर के लिए अंधा बना दिया। उस एक पल को लेखक यह भी नहीं जान सका कि वह छेड़ी गई शेरनी उस पर हमला करने आ रही है या जंगल की तरफ जा रही है। सौभाग्य से शेरनी ने जंगल की तरफ लौट जाना ही पसंद किया।
सौभाग्य से वह फ़ोटो बहुत अच्छा आया। यही वह तरीका था जिसके द्वारा लेखक ने एक शेरनी पर पहला सफल फ़ोटो खींचा। क्वेश्चन, व्हाट वाज द रॉन्ग विद द अर्ली कैमरास, विद काइंड ऑफ कैमरा डिड मेजर डगमोर वांट? पुराने कैमरों में क्या कमियां थीं? मेजर डगमोर किस तरह का कैमरा चाहता था? और नरेट व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड मेजर डगमोर फेस विद द कैमरा इन द इनिशियल स्टेज ऑफ हिज कैरियर एज ए फोटोग्राफर। लेखक ने जब शुरू में एक फ़ोटोग्राफर वाला काम अपनाया तो उसे कैमरे से संबंधित क्या क्या कठिनाइयाँ सामने आईं? आंसर, रिकॉलिंग हिज अर्ली डेज ऑफ फोटोग्राफी ऑफ सम 40 years बैक, मेजर डगमोर wrote that the cameras of those days were not reliable. The cameras would go out of order just at the right moment. The cameras were neither handy nor light. They were too heavy to be transported along with the safari. They required a well-trained photographer to operate them. Major Dugmore saw various makers of cameras and accessories to make lesson cameras and allied instrument of his need, but all in vain. No maker agreed to manufacture such articles only for a single consumer. After waiting for a long year of improved cameras were seen in the market, he started photography with the new and efficient equipment and got much success, fame and money in later days. लगभग 40 वर्ष पूर्व के फोटोग्राफी के अपने आरंभिक दिनों की याद करते हुए मेजर डगमोर ने लिखा है कि उन दिनों में के कैमरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। ठीक सही समय पर कैमरा खराब हो जाता था। कैमरे हाथ में ही नहीं ले जाए जा सकते थे। वे हल्के भी नहीं होते थे। वे इतने अधिक भारी बने होते थे कि उन्हें सफारी के साथ ढोया नहीं जा सकता था। उन्हें चलाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित फोटोग्राफर की ज़रूरत होती थी। मेजर डगमोर ने कैमरों व उनके पुर्जों के भिन्न भिन्न निर्माताओं से बात की कि वे उसकी ज़रूरत के लेंस, कैमरे व संबंधित यंत्र बना दें, किंतु सब व्यर्थ रहा। इस अकेले ग्राहक के लिए कोई निर्माता ऐसी वस्तुएं बनाने को राजी नहीं हुआ। लंबे वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद विकसित कैमरे बाजार में आए। उसने नए व बढ़िया कैमरों से फोटोग्राफी शुरू की तथा बाद के दिनों में काफ़ी सफलता, यश व धन प्राप्त किया। क्वेश्चन, वाई डिड मेजर डगमोर टर्न टू द कैमरा? वाई डिड ही regard it as a weapon? What difficulties did he face with this weapon in the beginning? मेजर डगमोर ने कैमरे को क्यों अपनाया? वह इसे एक शस्त्र क्यों मानता था? इस शस्त्र ने उसे क्या क्या प्रारंभिक कठिनाइयाँ दीं? आंसर, द इम्प्रूव्ड type of rifles made it very easy to kill the wild animals, so it gave the writer neither joy nor thrill to hunt them so easily. Therefore, the author turned to the camera for more fun, joy and thrill. Major Dugmore regarded the camera as a weapon because he had to chase the wild animals to shoot with it. It gave him the same pleasure as he used to have while hunting with the rifle. The difficulties he had to face were that the cameras of those days were not reliable. They would fail to work any moment. They were too heavy to be carried with ease. They required a well-trained photographer to operate them. Such were the difficulties he had to face to begin shooting the wild animal with his camera. सुधरी हुई राइफलों की सहायता से जंगली पशुओं की हत्या करना बहुत सरल हो गया। इसलिए इतनी सरलता से शिकार करके लेखक को ना तो प्रसन्नता होती थी और ना रोमांच ही होता था। इसलिए अधिक आनंद व रोमांच के लिए लेखक ने कैमरा अपना लिया। मेजर डगमोर ने कैमरे को एक शस्त्र मान लिया क्योंकि उसे लेकर जंगली जानवरों के चित्र खींचने के लिए लेखक को उन पशुओं का पीछा करना होता था
इस बात से उसे वही प्रसन्नता होती थी जो उसे राइफल से शिकार करने में होती थी। वे कठिनाइयाँ जिनका उसे सामना करना पड़ा वे यह थीं। उन दिनों के कैमरों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। वे कभी भी काम करना बंद कर देते थे। वे इतने भारी होते थे कि उन्हें सरलता से इधर से उधर ले जाना संभव नहीं था। उन्हें चलाने के लिए एक अच्छे प्रशिक्षित फोटोग्राफर की ज़रूरत पड़ती थी। जब लेखक ने अपने कैमरे से जंगली जानवरों के चित्र खींचना शुरू किया तब उसे इन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लैंग्वेज स्टडी। सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। रिसेंट का गॉन होगा, ओवरकम का बिन होगा, रेच WRETCHED रेस्ड का अनफॉर्चुनेट होगा, हार्मलेस का नॉन वायलेंट होगा, हेट का डिसलाइक होगा, बैरियर्स का सीवरल होगा, बीपन का आर्म्स, टेम का पैट, चॉइस का सिलेक्शन, अनलिंक्ड का डिसकनेक्टेड, फैसिनेशन का अट्रैक्शन, डिलाइटेड का प्लीज्ड। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फॉर्चुनेट का अनफॉर्चुनेट, सेटिस्फैक्ट्री का डिससेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री, रेगुलर का इरेगुलर, पेशेंस का इम्पेशेंस, प्लेजर का डिसप्लेजर, डिफ़िकल्ट डेफिनेट का इनडेफिनेट, लॉजिकल का इलॉजिकल, प्रॉपर का इम्प्रॉपर, कंटिन्यू का डिसकंटिन्यू, इनगेज का डिस इंगेज, वायलेंस का नॉन वायलेंस। रेस्ड का अनफॉर्चुनेट होगा, आउटफिट का इक्विपमेंट होगा, एंटीलॉप्स का डियर लाइक एनिमल्स, क्लमसी का ऑकवर्ड, स्नॉट का मेकिंग एंग्री साउंड थ्रू द नॉस्ट्रल, ये मैचिंग है, इंटेंसली का वोहीमेंटली, गेम का वर्ड्स एंड एनिमल्स जनरली हंटेड, एडो का फुस। शिवरिंग इन वंस बूट्स मीन्स होता है गेटिंग मच एफ्रेड एंड नर्वस, बहुत अधिक डर जाना और घबरा जाना। यूज करना है सेंटेंस। आस्किंग फॉर ट्रबल्स का होगा इनवाइटिंग ट्रबल्स, मुसीबतें बुलाना, इम्पोर्टेंट है। यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल्स इफ़ यू आर वर्किंग विद द स्मगलर, तस्कर। टू हैव द फ्राइट ऑफ वंस लाइफ मीन्स टू हैव डेंजर ऑफ लाइफ, जीवन को खतरा होना। नेक्स्ट, एज ए मैटर ऑफ कोर्स मीन्स समथिंग कमिंग इन इट्स यूजुअल वे, किसी बात का स्वाभाविक रूप से आना या होना। नेक्स्ट, टू गिव अप मीन्स टू लीव, त्याग देना। विदाउट मच एडो मीन्स विदाउट मच ट्रबल, बिना अधिक परेशानी के। ऑल द 20 डिक्वाइड सरेंडर्ड विदाउट मच एडो, सराउंडेड मीन्स आत्मसमर्पण कर दिया। नेक्स्ट है वन साइडेड गेम मीन्स समथिंग बोरिंग, समथिंग विदाउट थ्रिल, उबा देने वाला काम या रोमांचहीन। अ मैच बिटवीन द यूनिवर्सिटी टीम एंड माई स्कूल टीम विल बी ए वन साइडेड गेम। टू ब्रिंग होम मीन्स टू एक्सप्लेन, समझा देना। द ट्रॉफीज ऑफ द चेस मीन्स द हंटेड एनिमल, शिकार किए गए पशु। CRUD क्रूड मीन्स रफ, फाइन नॉट फाइन, भद्दा, जो सुंदर ना हो। स्टॉकिंग मीन्स मूविंग स्टीडली, चोरी चोरी चुपके चुपके झुक कर चलना। जस्ट फॉर फन मीन्स मजाक में। मैनिपुलेट मीन्स एडजस्ट, हिसाब बनाना। इन बैन मीन्स यूजलेस, बेकार में। इंड्यूस मीन्स प्रेरित करना। फैसिनेशन मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण। अंडरस्टैंडिंग मीन्स प्रॉमिस, वायदा। एबंडेंट मीन्स मच, बहुत। क्रुस्ड मीन्स डटकर या छिपकर, झुक जाना। ग्रेज्ड मीन्स छील दिया। लैंडस्केप मीन्स सीन, दृश्य। फ्रॉम द हिल टॉप वन कैन एंजॉय द ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ द वैली। EXPLOSION एक्सप्लोजन मीन्स धमाका ऑब्लिक विस्फोट। As soon as the people heard the explosion of the bomb in the market, they ran away. Stalk means होता है approaching an animal stealthily with a view to attacking it. Confront means be face to face. Induce means persuade somebody to do something. Manipulate means handle or operate. Deliberately means willingly. Desperate means one who is ready to do anything regardless of danger.
Condensed means stoop below one's rank or position. Prowl means moving furtively in search of prey. Thanks, best of luck.